جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ آیت ہے، میرا ماؤس نظر آ رہا ہے؟ جی میں دیکھتا ہوں۔ جی آ رہا ہے۔ آ رہا ہے۔ والوالدات والوالد یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد۔ لمن اراد پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ایک منٹ استاد جی میں ذرا اچھا لیمن جی لمن اراد۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ رہی میری؟ جی 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 استاد جی لمن اراد پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اے، ہاں ادھر اظہار کا قاعدہ ہے نا، ادھر ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اظہار کا قاعدہ کیا تھا؟ اظہار کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے تو کس کے اسے بعد؟ زہر کر کس اس کے بعد؟ زہر کر جی جی کس کے کس کے بعد حروف الکی آ جائے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ٹھیک ہے، ہلکی بالکل ٹھیک ہے، کمال ہو گیا، ماشاء اللہ۔ اگلی اگلی اس سے لمن اراد این یتم، این یتم کے اوپر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ این یتم۔ جی ذوالفقار بھائی۔ کے جنم میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے ادغام کریں گے، یعنی ملا کر پڑھیں تو گے۔ یعنی ادھر غنہ کریں گے؟ جی ادھر گناہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ این یتم ٹھیک ہے، این یتم چلیں اگلی اگلی لائن میں آ جائیں۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نفس، یہ ادھر کیا پڑھیں گے؟ یہ ادھر گناہ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم زہر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ وجہ یہ غلطی میں سے یہ حمزہ آ گیا ہے یہاں کس کے پر۔ بعد؟ نفس نفس کے بعد نفس میں نون ساکن ہے؟ جی یہ نفس آپ میں نفس میں نون ساکن ہے؟ نون تنوین ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش، بس ٹھیک ہے، بس اتنا ہی پوچھنا تھا کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ چلیں الحمدللہ، یہ آپ کو یاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جی جی اب آج جو ہم پریکٹس کریں گے وہ کرتے ہیں اخفاء کی، اور جو ادغام میں سے جو دو حرف رہ گئے تھے نا، بالغنہ والے، بلا غنہ والے، لام ڈا ہاں لام لر، لر ان دو کی پریکٹس نہیں کی تھی نا؟ جی 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 یہ دو، اور اسی طرح اخفاء والا قاعدہ، جی ٹھیک ٹھیک ہے۔ صرف ان دو کی کریں گے، آپ کو تین قاعدے یہ پکے یاد ہو جائیں گے اگر آپ اس کی پریکٹس کر لیں گے تو۔ جی 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 اچھا، آپ نے پکڑنا ہے نون ساکن اور نون تنوین کو، کیونکہ اس کے احوال چل رہے ہیں اور ان کی بیس چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جی 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 نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام آ جائے، وہاں پر ادغام ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ جی 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 ملا کے پڑھنا ہے لیکن گناہ نہیں کرنا۔ جی جیسے ادھر ایک مثال ابھی آئی بھی ہے، میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں۔ ولا مولود لہ، جی 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 مولود ہے نا، آگے لہو ہے، تو جی جی نون دلہ تنوین، یہ تنوین ہے نون دال کے اوپر، یہ نون تنوین ہے، ٹھیک ہے، اور آگے لام ہے، لر میں سے لام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوا؟ یعنی گناہ نہیں ادغام ہوگا تو، لیکن ہاں ادغام ہوگا۔ ادغام تو ہوا ہے، یعنی پیچھے والا حرف جو ہے وہ آگے والے حرف کے اندر مضم ہوا ہے، ملا ہے، لیکن یہاں پر ادغام نہیں ہوا، جی جی ہونا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جی ایک مثال ہو گئی۔ دوسری تھی اس کے اندر را کی مثال، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، من ربی کا، اصل میں ہے من ربی کا، ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو اب نون ساکن کے بعد را آ گیا، تو اب نون ساکن کے بعد جب را آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا، تو ہم پڑھیں گے مر ربی کا، مر ربی کا،
बात समझ आ गई। बिल्कुल। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आप। जी बिल्कुल, मैं कर लूँगा। जी। आप मिसालें नहीं भेजते आजकल, खैरियत है, नाराज़गी हो गई। नहीं नहीं, आगे नया सबक तो पढ़ा नहीं था। पिछली हाँ तो बस। मैंने भेजी थी। इसकी इसकी आपने पहले भेजी थी ना, इस हफ्ते तो नहीं भेजी ना। अच्छा, हर हफ्ते भेजनी होती है? मतलब हर हफ्ते भेजने का मकसद ये होता है कि आपको भूले नहीं। चलो ठीक है, जब इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पर जो जो हम जुम्मे को जौन सी भी क्लास पढ़ें, चाहे हम पीछे से रिवीजन कर रहे हो या कोई नया सबक पढ़े ना, जुम्मे वाले दिन तजवीद का जी ना, जी। तो चलें ठीक। उसकी आप मिसालें ज़रूर भेजें। चलें ठीक है, जो पढ़ा हाँ होगा। जी, जैसे जो पढ़ो, आज। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ना, लर की मिसालें पढ़ रहे हैं, या इस तरह इख्फा का भी पढ़ेंगे, तो आपने ना इसकी मिसालें भेजनी। इससे ये है कि आपके आपके जहन में हर वक्त कायदा भी याद होगा और मिसालें भी आपके जहन में होंगी कि यहाँ पर ये हो रहा है। जी इंशाल्लाह। जी, तो इससे आप जब भी आपने थोड़ा तजर्बा किया है खुद, कि आपको कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है या नहीं। बहुत ज्यादा, पहले तो इसका पता ही नहीं था तजवीज़ होती क्या है। अच्छा, चलें बिल्कुल बस। नहीं। चलें, अब मतलब कि आपने फ़ायदा कुछ महसूस किया है। बहुत ज्यादा। चलें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ठीक है। आप जुड़े रहें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। आप लगे बिल्कुल। रहें बस। जी जी आप इंशाल्लाह। जुड़े रहें, लगे रहें, तो हमें कोशिश ये होती कि जितने से आसान जो है करके समझाया जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई बात ना हो, तो मैं कई मरतबा आपको ये कह चुका हूँ कि कोई भी मसला आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे पर्सनल पे कॉल कर लें, मैसेज कर लें। जब भी जी मैं जी। सुनूंगा तो आपको इंशाल्लाह जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है उस्ताद। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहला कायदा तो मैंने आपको ये बता दिया कि इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम बिला गुन्ना किसे कहते हैं। आप आगे तफसील आप बताएंगे। जी जी। इतलाम बिला गुन्ना ये है कि यार रुबे यरमलून के जो अल्फाज हैं, लाम और रा, जी, ये यानी इनको इतलाम तो होगा, आपस में मिलाएंगे, लेकिन गुन्ना नहीं होगा। कहाँ पर नहीं होगा, किसके बाद ही आएंगे। ये नून साकन और ठीक है। नून साकन और हाँ, नून तनवीन। साकिन और तनवीन के बाद लाम और आ जाए तो वहां पर इदगाम होगा, लेकिन गुन्ना नहीं गुन्ना। होगा। जी अब इख्फा का कायदा आज एक हम और पढ़ लेते हैं। जी जी। बिल्कुल आसान सा है। जी जी। नहीं, कहता तो मुझे याद है। जी, इख्फा जी का जी। कायदा ये, इख्फा का मतलब होता है छुपाना। जी जी। इसमें आधी आवाज नाक में होती है, आधी आवाज मुंह में होती है। अच्छा अच्छा। नून साकिन या तनवीन के बाद ना हरूफ हल्की हो, ना हरूफ यरमलून हो, और ना ही बा हो। अलिफ और बा बताया था आपने। अलिफ और बा, हाँ। ठीक है। तो ये 14 हरूफ जब निकाल देंगे 29 हरूफ में से, तो बाकी कितने बच जाएंगे। 15। 15। अब जी आप ये समझें कि इन 14 हरूफ के अलावा जौन से भी 15 हरूफ जो है वो आएंगे नून साकिन या तनवीन के बाद, वहां पर इख्फा होगा। जी जी। अब देखते हैं मिसालें, एक एक लाइन के अंदर आपको कितनी कितनी मिसालें मिल जाएंगी। जी, ये मिसाल आ गई। जी जी। फ़इन अरादा फिस्वालन अन तरादिन, अन तराविन, अन तराविन। अन। अन के अंदर नून क्या है। ये नून साकन है। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की है, नहीं नहीं, ना ही रुपए हल्की है, ना ही रुपए यरमलून है। बा है। अलफ और बा भी नहीं ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा। है। ये आधी आवाज मुंह में और आधी नाक में। इधर इख्फा होगा, बस वो आपको समझाने के लिए बताया। जी जी। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा। इख्फा। अच्छा, इख्फा होगा। ये फिस्वालन, अन के ऊपर क्या हो रहा है, फिस्वालन, आगे अन। फिसालन। नून तनवीन के बाद ये हरूफ हल्की आ गया।
तो गुना होगा? जी, गुना नहीं होगा, ये नहीं इजहार होगा। होगा। ठीक हो गया, बात समझ आ गई, चलें। उसके बाद आगे आ गया, फ़इन फिसाल अन तराज़िम मिनहुमा व तशावुरिन फला जुनाहा, व तशावुरिन फला, यहाँ पर क्या होगा? ये यहाँ पे इख्फा होगा इख्फा क्यों क्योंकि होगा? नून तनवीन के बाद फा आ गया है। फा हरुफ हल्की ना में से है। ना ना हरूफ हल्की में से है, ना हरूफ यरमलून में से है, ना ही अलफ और बा है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। जी, बात समझ आई। उसके बाद आगे, वइन अरदतुम अन तस्तरज़िउ औलादकुम फला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौन। अच्छा, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौन मिनकुम व यज़रून अज़वाजा, मिनकुम के ऊपर क्या हो रहा है? ये उस्ताद जी किधर है ये? जरा मोस लगाइएगा। जी, ये देखें, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौन मिनकुम। हाँ, मिन को। जी, ये ये नून साकन के बाद काफ आ गया है तो नून इख्फा साकिन, होगा। इख्फा होगा, बात समझ आ रही है। जी जी जी। ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فأجلوا عليهم فيما. सही जी, अखफा इख्फा जब होगा तो उसको हम कह सकते हैं ना, गुना नहीं होगा, इख्फा होगा। नहीं, ये गुन्ने के साथ का ही होता है, इसको आप ये नहीं कह सकते गुन्ना नहीं होगा। बल्कि आप, मतलब इसका नाम तो अलग है इख्फा का, ठीक है, लेकिन आप तो बीच में ये नहीं कह सकते कि गुन्ना नहीं हो सकता, क्योंकि बस इसके समझ अंदर गया। आधी आवाज़ जो है वो नाक में जा रही होती है। ठीक है, ठीक ठीक। है, अगर आप ये कहेंगे ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि सही, मैं गुन्ना समझ फिर कहाँ पर गया। करना है और इख्फा फिर कहाँ पर इसलिए करना है। मैंने सवाल किया। जी, चले आगे है, वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रज़्तुम बिही मिन खितबतिन। अच्छा, मिन खितबत के ऊपर क्या हो रहा है? ये उस्ताद जी मौस, अच्छा अच्छा, मौस जरा चलाइएगा, फिर मैं ये समझ। माउस, ये पहली लाइन में ऊपर, हाँ, मिन। मिन खितबा। मिन खितबा। जी, मिन खितबा। यहाँ अखवा अखवा नहीं होगा। तो क्या होगा ना, वो जो होगा वो बताएं। मिन खितबा। जी, नून साकन के बाद यहाँ पे गुना नहीं होगा क्यों? क्योंकि ये हरूफे मिन खितबा। यहाँ थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं भाई? नून को पकड़े, नून के बाद क्या आ रहा है? नून के बाद, हाँ हाँ, सही है। हरूफ आपने, हल्की आ रहा है, आपको मैं, नहीं नहीं, मिन मिन की बात हो रही है। हरूफ हल्की आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे गुना नहीं होगा। तो मैं यही आपको कह रहा था कि आप जब भी मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखें कि वहां पर नून साकिन या नून तनवीन है। हाँ, आपने अब पहले समझ नू आया। आपने पहले नून को पकड़ना है कि मैं जो मिसाल पूछ रहा हूँ वो नून साकिन है या तनवीन है, ठीक पहले है उसको उस्ताद। ढूंढें। अगर नून साकिन या तनवीन में से दोनों में से नहीं, फिर आप सवाल कर सकते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, अब क्लियर हो गया। समझ आ गई? आपने नून को बिल्कुल। तलाश करना, नून कौन सी है वहां पर, तनवीन है, दो जबर दो जेर दो पेश है, या साकिन है। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये नून साकिन या तनवीन है, उसके बाद आप देखें कौन सा रफा रहा है, फिर आपको कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक है उस्ताद। अच्छा अच्छा, उसके बाद आ गया मिन खितबतिन निसाई औ अकनंतुम, औ अकनंतुम, उसके अगला लफ्ज है औ अकनंतुम, के ऊपर क्या हो रहा है? ये इख्फा है क्योंकि नून साकन के बाद ता आ रहा है। ठीक हो गया, फी अनफुसिकुम। ये इख्फा है क्योंकि नून साकन के बाद फा आ रहा है। शाबाश, बिल्कुल कमाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? वला किल्ला तुवाइदुहुन्ना, वला किल्ला, वाला। वला हाँ, नून। किल्ला। हाँ, नून साकन के बाद रूफे हल्की आ गया है। हरूफ नहीं हल्की नहीं नहीं क्या है? नहीं 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 नहीं। ये वो लाम लर आ गया है। लर लाम आ आ गया। गया, लाम आ गया, तो यहाँ पर क्या यहाँ होगा? पे गुना नहीं हुआ, गुना नहीं हुआ। गुन्ना नहीं होगा, बात समझ आ गई है? जी बिल्कुल समझ आया। अब भूलेगा तो नहीं इंशाल्लाह?
کبھی بھی نہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں بولے گا انشاءاللہ، اب آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا انشاءاللہ۔ جی 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 ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آ گیا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا، سِرًّا إِلَّا پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف ہلکی آ گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، إِلَّا أَن تَقُولُوا، أَن تَقُولُوا پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد یہ اخفا ہوگا کیونکہ تا آ گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اس کے بعد آ گیا یہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ حقا علی المحسنین۔ نون تنوین کے بعد یہ حروف ہلکی آ گیا ہے، تو ہم، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا فَإِنْ خِفْتُمْ کے اوپر کیا ہو رہا فائن ذرا موس لی جائے گی استاد جی۔ ہے؟ یہ موس ہے یہ، فَإِنْ خِفْتُمْ نظر آ رہا ہے موس؟ ہاں ہاں نون ساک ہاں ہاں اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی ہے۔ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَرِجَالًا أَوْ کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی اظہار ہے، اظہار ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بس انشاءاللہ سمجھ اب آ گئی ہے۔ جی وصیتل کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ وصیتل، یہ ذرا موس یہ اینڈ والی لائن میں اچھا ہاں اب نظر آ گیا۔ یہ اظہار ہوگا، نہیں 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 اظہار، استاد جی، یہ حروف یرملون کا یہ ادھر گناہ نہیں ہوگا، لر ہے لر۔ لر ہے، گڈ ہو گئی، شاباش۔ بات سمجھ آ گئی؟ بالکل استاد جی اب سمجھ بھولے آ گا گیا۔ تو نہیں؟ نہیں نہیں انشاءاللہ، بس اب آپ نے اس کی مثالیں مجھے بھیجنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کی لر کی اور اخفا کی۔ ہاں، لر کے اور اخفا کی۔ ٹھیک ہے استاد، انشاءاللہ۔ انیس صاحب آئیں گے؟ جی جی آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔